See, accounting principle or concept. Okay, welcome students. Today we will discuss in accounting principles or concepts. Okay, I already discussed in a previous video. Accounting principles or concepts are the assumptions or preposition based on which financial transaction are recorded. Okay, जिसमें these are the uniform principles on which financial transaction are recorded and prepared. In other words, they are the principles of rules of accounting. Okay, so these are the rules of accounting. Rules of accounting means in science, if you are studying the science, the Newton law, okay, gravitation law, there are many types of laws. Okay, these are the principles. So in accounting there are some principles on which accounting is done. So there should be a uniformity in the accounting. Accounting में क्या होनी चाहिए? Uniformity होनी चाहिए. These principles or rules are followed so that financial statement are better understand and it should be uniform in the manner by the user. Okay, कि these should be a uniform, मतलब एक जैसा होना चाहिए. Now see the okay, so these all are the concept. These all are the accounting principles or concept. You can say principles or concepts. Okay, so I will discuss you one by one these concepts जो important है. Okay, some we will discuss when we will do the accounting, but in this video we will discuss about the important concept on which accounting you have to do the journal entry, you have to prepare the account. So on that basis we will discuss the important one here. Okay, you can read detail, you can read in the book. I will discuss the important issues. Okay, so what important principles? So first one is a going concern concept. Okay, going concern concept, I will discuss accounting entity concept. First one is going concern concept, second one is accounting entity concept, third one is money measurement, accounting period concept of full disclosure concept, revenue reconciliation or realization concept, verifiable objective concept, matching concept or you can say matching principles, historical cost concept, accrual concept, dual aspect concept, materiality concept, consistency concept और कंजर्वेटिज्म और यू कैन से प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और टाइमलेस कॉन्सेप्ट. ओके, तो जो फर्स्ट दीज ऑल आर द 15 कॉन्सेप्ट्स. ओके, ये 15 जो कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं को ये जो प्रिंसिपल्स है इन्हीं के बेसिस पे क्या होती है, जो भी अकाउंटिंग होती है वो अकाउंटिंग की जाती है. अकाउंटिंग मीन्स कि हाउ टू राइट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. Okay, what are the important instruction while you have doing the accounting? What are the instruction you follow? What are the rules and regulation methods? Okay, these all are the okay. So you can read it. तो फर्स्ट वन इज अ गोइंग. देखो फर्स्ट सबसे पहला कौन सा है बच्चे? सबसे पहला देखो फर्स्ट वन आई एम डिस्कसिंग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? जो भी अकाउंटिंग होती है हमेशा ये सोच के की जाती है कि जिस भी बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हो या जिस भी कंपनी के लिए आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपकी शॉप है उसके लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो, वो हमेशा, मैं उसको हिंदी में इसलिए बता रहा हूं आपको कि यू कैन रीड इन इंग्लिश, कि हमेशा ये सोच के अकाउंटिंग की जाती है कि आपका बिजनेस ऑलवेज इट शुड बी कंटिन्यू, कि फ्यूचर में कभी आपका बिजनेस क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगा. आपका बिजनेस हमेशा फ्यूचर में क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा. चाहे कोई कंपनी है, कंपनी भी इसी तरीके से अकाउंटिंग करती है. कंपनी ये सोच के अकाउंटिंग करती है कि हमारी कंपनी फ्यूचर में क्या रहेगी, कंटिन्यू वर्क करेगी. ओके, उसी तरह आप जो शॉपकीपर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी अपनी छोटी छोटी शॉप होती हैं, वो भी ये सोच के बिजनेस करते हैं कि उनका बिजनेस ऑलवेज रिमेन द कंटिन्यू, हमेशा बिजनेस क्या रहेगा, चलता रहेगा. तो इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. ओके, कि अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, एन एंटरप्राइजेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू ऑपरेटिंग इनडेफिनिट इन द फ्यूचर, कि हमेशा वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इट विल रिमेन द कंटिन्यू indefinitely in the future. According to this concept, it is taken that business will continue for foreseeable futures and there is no intention to close down the business or scale down its operation is significantly. It is because of this that distinction is made between the capital expenditure and revenue expenditure. Okay, one whose benefit will be exhausted within the year. Okay, तो हमेशा ये सोच के अकाउंटिंग की जाती है कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा फ्यूचर में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा.
ओके, द बिजनेस विल बी कीप ऑन गोइंग। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस किया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस कि जिन एक्सपेंडिचर विच गिव द लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट, इट गिव्स द 4 years 5 years। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द बिजनेसमैन ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स। और एसेट्स से क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब 2 year 3 year 4 year 10 years 20 years, तो इट मीन दे गिव द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ओके, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस हमेशा क्या रहेगा, फ्यूचर में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा आपका बिजनेस। अगर अकाउंटिंग ये सोच के की जाए, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, अकाउंटिंग हमेशा ये सोच के की जाती है कि आपका बिजनेस हमेशा क्या रहे, कंटिन्यू रहे। अगर अकाउंटिंग ये सोच के की जाएगी कि आपका बिजनेस क्या होगा कि फ्यूचर में बंद हो जाएगा, तो होगा क्या, होगा ये कि जिस बिजनेस ने 1 साल बाद बंद होना था वो 6 महीने में ही बंद हो जाएगा। अब जिसने 6 महीने में बंद हो जाना था उसने 1 हफ्ते में बंद होता है। कि होता क्या है मार्केट में कि अगर हर आदमी के दिमाग में ये हो गया, कोई कंपनी है, सपोज एंड देयर इज अ कंपनी, ओके, अ कंपनी अकाउंटिंग करी, और कंपनी को जो भी अकाउंटेंट हैं, जो भी क्या कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनको मालूम है कंपनी आज से 5 years के बाद 2 years के बाद कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो कंपनी बंद होगी, तो कंपनी बंद होने का सबको मालूम है। तो क्या होगा कि सभी लोग क्या करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड हैं सारे के सारे क्या करेंगे, अपनी मनी क्या करते रहेंगे, अपनी कैपिटल को निकालते रहेंगे। ओके, कोई दूसरी जॉब में क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉय हैं वो कोई दूसरी जॉब सर्च करेंगे। तो उस तरीके से क्या होगा, कंपनी ने चलना तो 2 साल था, लेकिन अगर ये सोच के अकाउंटिंग होगी कि इस बिजनेस ने क्या होना है, 2 साल बाद बंद हो जाना था, वो 2 साल नहीं, वो विदिन 1 years में ही क्लोज शट डाउन हो जाएगा। कि क्या होता है कि पैसा क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, विड्रॉल होना स्टार्ट होता है। ओके, तो हमेशा ये सोच के अकाउंटिंग की जाती है कि फ्यूचर में क्या होगा, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ओके, तो इससे क्या होगा, बिजनेस क्या रहेगा, देयर विल बी अ कंटिन्यूटी इन द बिजनेस। और अकाउंटिंग यही सोच के की जाती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज अ अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस is separate from ownership. Business is separate from ownership. Okay, इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स in the separate and distinct from its owner. Business transactions are recorded in the books of account the business point of view, not from the owner point of view. हमेशा जो भी ट्रांजेक्शन को जो भी रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स की अकाउंट में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि बिजनेस एंड ओनरशिप दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अगर बिजनेसमैन भी अगर अपने बिजनेस से कैश निकालता है या फिर कोई सामान निकालता है, तो उसको भी क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसको भी क्या किया जाएगा, अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, ओवर ऑनर्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेसमैन एंड अमाउंट ड्यू टू हिम शोन एज अ लायबिलिटी। इसीलिए जो बिजनेसमैन होता है, जो पैसा उसने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया रहता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी। किसके लिए इंटरनल लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए। कि बिजनेस ने अपने जो उसका ओनर है उसको एक दिन कैपिटल को क्या करना है, रिटर्न करना है। कैपिटल को क्या करना है, रिटर्न करना है। इसीलिए जो भी पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया है, वो एक किस्म से क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी क्या है, कि बिजनेस ने उस कैपिटल के ऊपर रिटर्न भी देना है और उसकी कैपिटल को एक दिन वापस भी करना है। ठीक है, द कैपिटल अकाउंट विच द बिजनेस आर क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड टू द ड्राइंग मेड। ओके, तो द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू द ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, it should be kept in the mind that distinction is made only for accounting point of view. Legally creditor can file suit against the owner. Okay, तो ये जो अगर तो आप ये कर रहे हो सिर्फ accounting के point of view से, it should be kept in the mind that distinction is made only from the accounting view of point. Legally a creditor can file suit against the owner in the case of except in the case of company. Okay, कि अगर
कंपनी की तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली तो वो एक ही है, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वो दोनों क्या है, सेपरेट हैं। कंपनी तो अपने आप में ऑलरेडी सेपरेट होती है, लेकिन कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई सिंगल बिजनेस ओनर और सिंगल प्रोप्राइटरशिप है, तो उसमें क्या आता है कि भले वो सेपरेट तो हैं, लेकिन लीगली क्या है, वो जो उसका ओनर है ही इज अ लाइबल। ओके, तो दिस इज अ मेन पॉइंट। ओके, कीप इन द माइंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि आई ऑलरेडी डिस्कस्ड यू कि ऑल द ट्रांजेक्शन आर recorded in the accounts books which can be measured in the terms of money। कि वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड क्या करेंगे जिन ट्रांजेक्शन को आप क्या कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो ये याद रखना, ओनली दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बुक्स विच कैन बी मेजर्ड इन द मनी। ओके, नाउ सी नेक्स्ट देखो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, अकाउंटिंग इज डन फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अकाउंटिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाती है, ठीक है। बिकॉज अकाउंटिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब क्या कि अकाउंटिंग तो हमेशा यही सोच के की जाती है कि बिजनेस हमेशा फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, तो फ्यूचर में तो बिजनेस कंटिन्यू ले, लेकिन जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है, बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या की जाती है, अकाउंटिंग, एक टाइम पीरियड तक अकाउंटिंग की जाती है, और उस टाइम पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि ये पता लगे कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। तो उसको बोलते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड सो दैट परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलरली। द अकाउंट्स ऑफ एंटरप्राइजेज आर मेंटेन फॉलोइंग गोइंग कंसर्न। सो मी ओके, तो यू कैन रीड इट। तो अकाउंटिंग क्या होता है, खासकर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए की जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए की जाती है। तो जैसे कि इन कॉमन प्रैक्टिस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, तो अकाउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर एंड इट क्लोज टू द 31 मार्च। फिर नेक्स्ट ईयर की फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 सम बिजनेस। ओके, तो दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, 6 मंथ्स के लिए भी हो सकता है, फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो। कुछ लोग कैलेंडर के हिसाब से करते हैं, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। दिस इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर विच अकाउंटिंग इज डन। फिर नेक्स्ट ईयर फिर पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है, फिर से क्या बनता है, पूरा अकाउंटिंग की जाती है। अब पर्टिकुलर डेट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। ओके, तो इट इज डिवाइडेड इनटू अ शॉर्ट टर्म्स। ओके, तो रिक्वायर्स, इट इज नोन एज द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इन द अबव द लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड यूजुअली 1 ईयर विच इज टर्म एज अकाउंटिंग पीरियड, जिसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। इट कैन बी अ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इट मे बी कैलेंडर ईयर फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर, कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर मीन देयर शुड बी अ कंप्लीट डिस्क्लोजर।